Hey guys, so in our last session we studied about sole proprietorship, right? So before starting with the next form of business organization, let me just make you recall the thing that we studied in our last session. एक बार हमने जो last session में पढ़ा था वो एक बार फटाफट से recall कर ले and then we'll be doing the करता यानी कि HUF वाला thing, right? So first of all let's just revise or recall the last session. So in our last session we studied about sole proprietorship. Right now I'm making you recall it from your textbook only so that you can just check it out if you have not done it yet from your textbook. So on your page number 44 there are characteristics, that is easy to establish, capital, power of administration, freedom of work and quick decisions, that we did already. Then next is liability, maintenance of secrecy, personal contact, centralization of ownership and management. Advantages में again easy to establish, maintenance of secrecy, less capital, quick decisions, personal contact, flexibility, less tax burden, less legal restrictions, that also we did. And in our limitation, limited capital, unlimited liability, short duration, limited work capacity, possibility of wrong decision and lack of advantage of large scale business. So that is what we did, right? वो हमने पूरा आराम से ख़त्म कर लिया था. So now today we are going to start with the next thing, that is what your HUF. हम शुरू करने वाले हैं किससे? HUF से. That is what Hindu undivided family, that we are going to study. That is Hindu undivided family. Just a minute. Yes, over here. I hope you can check it out on your screens क्लियरली. चलो फाइन. सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें मैंने आपको एक ब्रीफ सेशन दिया था तब बताया गया था कि भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या, जहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस चला आ रहा है, फैमिली बिजनेसेस देयर, ग्रैंड पेरेंट्स के भी ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम से बिजनेस चला आ रहा है. दैट इज़ व्हाट योर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स बोला गया है एग्जिस्टेंस बाय लॉ. एग्जिस्टेंस बाय लॉ मतलब क्या? देयर आर वेरियस लॉ इन आवर कंट्री एंड फ्रॉम विच वन ऑफ द लॉ इज हिंदू एक्ट. तो हिंदू एक्ट के तहत ये बिजनेस रन करता है. देयर इज अ स्पेसिफिक लॉ, specific rules and regulations for this particular thing, that is HUF. ये जो business होता है that is Hindu undivided family, वो run कौन करता है? Yes, of course family people, business पूरे family के जितने भी लोग हैं वो सब run करते हैं, that is fine. But the whole and sole person, the person who is the senior most of the family will be known as कर्ता. उसको क्या बोलेंगे? कर्ता बोलेंगे. Business administration is done by the head of the family who is called whom? कर्ता. अब ये तीन चीज़ें हैं. सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट पे मैंने कुछ ब्रैकेट करके लिखा हुआ है कर्ता. व्हाट इज दैट? मैनेजमेंट इज डन बाय कर्ता. फाइनेंशियल कंट्रोल जो रहता है वो भी किनका रहता है? कर्ता का रहता है. एंड थर्ड, लायबिलिटी भी मैक्सिमम किनकी रहती है? कर्ता की रहती है. इफ योर दादाजी इज अलाइव एंड ही इज हैंडलिंग द बिजनेस, ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, देन ही विल बी द कर्ता. एंड द मैनेजमेंट, द फाइनेंशियल कंट्रोल एंड द लायबिलिटी, द मैक्सिमम लायबिलिटी will be of your dadaji. That is the karta of the family, right? Karta of the Hindu undivided family. Then membership is given there by birth. वहाँ पे ऐसा नहीं कि मुझे आज मेरी फ्रेंड की हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज़ देयर, उनका बहुत अच्छा सा बिजनेस चल रहा है एंड आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ इट. आई बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे ऐसा है कि मैं मेरी जो नॉलेज है, मेरी जो स्किल्स है वो वहाँ जाके उसके बिजनेस में यूटिलाइज करूँ और बिजनेस को बढ़ाऊँ. आई कैन नॉट डू दैट. Yes, I can do that by going there and by just informally I can do that, but I cannot be the part of that HUF because I am not from their family. The person who are family members can only be the members, even they are minors, that is by birth. By birth आप वहाँ पे मेंबर हो जाते हो आपके HUF में, करेक्ट. देन इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ ऑपरेशन, इट इज़ टोटली इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ ऑपरेशन. आज मेरा कोई HUF चल रहा है, मतलब मेरे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का कोई चल रहा है फैमिली बिजनेस, इन दैट आई एम डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ इट, बट आई कैन डू समथिंग ऑन माई ओन. आई एम रनिंग माई ओन क्लासेस ऑन माई ओन, दैट इज फाइन. दैट HUF, that and the member of HUF can do their own business, that is all okay. It is running completely independent
independently, there is totally an independent field of operations, right? Then next is lifespan. The lifespan of the business is like, I can say, very long. Why so? Because आज जो करता है, if he is dead, तो उसका next most जो the most senior person of the family member will be there. He will be the karta. Once he is dead, then next, and so on. So पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा business है, तो उसका lifespan will be long, very long, क्योंकि one by one karta will be changed. Then the difficulty in raising funds, definitely if karta is not working properly the manner they should work, in that case there will be difficulty in raising funds, because yes, family members are there. If they are giving attention in the business, then it is fine. But what if they are running their own businesses individually and they are not much interested in that family business, that HUF? In that case, karta needs to be strong. If karta is not strong, then there is going to be a difficulty in raising funds, right? Then next is insolvency. If the karta is insolvent, the whole HUF will be gone. So there are chances, if karta is not proper, then there are chances HUF will be completely demolished, right? So this is what they are saying. And from your textbook, if I can say so, you can check it out from your page number 46, whatever that I have explained is given over there. On your page number 46, characteristics are given. That is what we studied. Existence by law, management by karta, independent field of operation, membership is by birth, financial control is of karta, liability बहुत सारी हो जाएगी किनकी, कर्ता की, बाकी सबकी लिमिटेड रहेगी. देन लाइफ स्पैन इज लाइक longer, difficulty in raising funds, and insolvency. Liability of karta in insolvency also will be unlimited. So I hope you are clear with the HUF thing. HUF के बारे में सही से समझ में आया है, ऐसा मैं assume करके चल रही हूँ. Now let's move ahead with something bigger than HUF. कुछ ऐसा जो आप लोगों ने देखा होगा practically. And that thing is nothing but what? Partnership. मैं पार्टनरशिप के बारे में अगर यहाँ पे बात करूँ, देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ डूइंग बिजनेस, बहुत अच्छा उसका बिजनेस चल रहा है. नाउ ही वांट्स टू एक्सपांड. मैं मेरी बात करूँ, चलो मेरा ही बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है एक जगह पे. आई एम डूइंग इट वेरी वेल. मेरे बहुत अच्छे क्लासेस चल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और अब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि चलो ये जगह एक्सप्लोर हो गई है एक बार, तो अब मैं कोई और एक एरिया में जाके कुछ एक्सपांड कर सकती हूँ. आई मेट वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज़ रिसाइडिंग इन सम डिफरेंट एरिया, एंड आई टोल्ड हिम कि भाई मेरे को बिजनेस एक्सपांड करना है. आर यू इंटरेस्टेड इन टेकिंग कमिंग विथ मी एंड रनिंग दिस क्लासेस लाइक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही इज़ ऑल्सो रेडी कि भाई चलो फाइन, कुछ CA बनने से कुछ अच्छा कर सकते हैं तो डेफिनेटली करेंगे. हम दोनों ने मिलके पार्टनरशिप करी, और लेट्स से मैं हूँ गुरुकुल एरिया में, XYZ एरिया में, और मैंने सैटेलाइट एरिया के साथ पार्टनरशिप करी, सैटेलाइट एरिया के मेरे फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप करी. ना वी बोथ आर पार्टनर्स इन बोथ द ब्रांचेस. अब हम लोग गए दूसरे एक एरिया में, दैट इज़ लेट्स से मणिनगर एरिया. वहाँ पे इसका ही और एक फ्रेंड था हु इज़ रेडी कि फ़ाइन चलो आ जाओ इधर, मैं भी यहाँ पे आप लोगों के साथ बिजनेस करने के लिए रेडी हूँ. यहाँ पे अब हम 3 पार्टनर्स हो गए. सो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो स्क्रीन पे कि भाई बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं, पीपल आर कमिंग इन विथ अस फॉर पार्टनरशिप, जिससे हमारा बिजनेस थोड़ा एक्सपांड भी हो रहा है. ओन हम तीनों कर रहे हैं, मैनेज भी हम तीनों कर रहे हैं, कंट्रोल भी हम तीनों कर रहे हैं इन दिस केस. पर यहाँ पे मैं और एक चीज़ जो सिखाना चाहूँगी, समझना अच्छे से. अब हम थोड़ा नोट्स में से पढ़ेंगे. दिस इज़ नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ पार्टनरशिप कि भाई पार्टनरशिप किसे बोलेंगे, इसके लिए मैंने आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दिया. बट नाउ from the notes we are going to start studying
जिसमें आपको दिख रहा है कि भाई ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय मोर देन वन पर्सन, दैट वी स्टडीड इन आवर एग्जाम्पल, और वन पर्सन एक्टिंग फॉर ऑल. नाउ व्हाट इज दैट वन पर्सन एक्टिंग फॉर ऑल? देयर आर चांसेस कि भाई हम लोगों ने तीनों ने मिलकर 3 ब्रांचेस करी और 2 करनी है, पर नाउ मैं ऐसा बोल रही हूँ कि नहीं यार, अब मेरा थोड़ा शेड्यूल पैक है, मैं 3 ब्रांचेस तो फाइन, आई विल बी एबल टू हैंडल, मैं ये तीनों ब्रांचेस तो हैंडल कर ही रही हूँ, कंट्रोल सब मैनेजमेंट में मैं सभी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हूँ, पर ये जो 2 ब्रांचेस है ना, दूसरी जो हमें करनी है, उसके लिए तुम दोनों ही आगे बढ़ो. I'll be the partner, I am there, if any case you need my help, I'll be there, but I won't be able to manage, I won't be able to come over there and manage that branches that you are supposed to do on your own. अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ उनको, दे आर ओके विथ इट, हमारी पार्टनरशिप तो चालू ही है भाई, हाँ फाइन, नो प्रॉब्लम, आई एम देयर, इफ नीडेड आई विल बी देयर, बट मैनेजमेंट मैं उस टाइप पे नहीं कर रही हूँ, वहाँ पे नहीं कर रही हूँ. इन दैट केस दैट पर्सन, द पर्सन हु इज हैंडलिंग दैट ब्रांच इज एक्टिंग फॉर ऑल 3 ऑफ अस. करेक्ट. वहाँ पे एक बंदा ही भले मैनेज कर रहा है, पर वो हम तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट पर्सन इज रिप्रेजेंटेटिंग ऑल ऑफ अस. द होल पार्टनरशिप फॉर्म इज बीन रिप्रेजेंटेटेड ओवर देयर कि भाई फाइन, ये फॉर्म है, दिस इज द पार्टनरशिप फॉर्म, और मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ. दैट इज वन पर्सन एक्टिंग फॉर ऑल. ऐसा पॉसिबल है कि भाई पार्टनर्स आर देयर बट मैनेजमेंट एक का ही चल रहा है, दैट इज फाइन, दैट इज पॉसिबल, दैट इज completely all right, right? Now there are characteristics, advantages and limitations of partnership form as well. जिसमें कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला है देयर विल बी एन अग्रीमेंट. अगर आपको किसी बंदे के साथ पार्टनरशिप करनी है, देयर विल बी एन अग्रीमेंट. आप ऐसे ही इच्छा हो गई शुरू हो गए, ऐसा नहीं होता. either oral or written, but there will be certain terms and conditions which will be very much clear कि भाई ऐसे ऐसे चलना है, ऐसा प्रॉफिट होगा, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एक्सेट्रा. सो इट विल बी वॉट वेरी क्लियर कि भाई इस तरीके से करना है. देन रजिस्ट्रेशन, if possible it is definitely advisable to make your firm registered. आप रजिस्टर करवा लो, सब कुछ स्टैंपिंग वैम्पिंग के साथ, पूरा नोटरी, पता है ना एडवोकेट एंड नोटरी कभी सुना हो तो, वहाँ जाके स्टैंपिंग वैम्पिंग करवा के भाई ये फर्म है, ये दिन पे एस्टैब्लिश हुई है, दिस इज द मोटिव, दिस आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डू, दिस आर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दिस आर द कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. This is advisable. Now in question in your exam they may ask you, registration of a partnership firm is compulsory. True or false? It is false. Registration of partnership firm is not compulsory but advisable. Understood? So registration करवाना रहता है. थर्ड इज एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीडिंग्स. जो भी एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीडिंग्स है, प्रोसीजर्स है, दैट यू नीड टू फॉलो फर्स्ट. जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने देखा था कि आज मेरे को इच्छा हुई चलो चॉकलेट मेकिंग का बिजनेस शुरू करना है और मैंने कल जाके शुरू कर दिया, ऐसा पार्टनरशिप में नहीं हो सकता. फॉर दैट थिंग यू नीड टू एस्टैब्लिश योर फर्म, यू नीड टू बी क्लियर विथ योर पार्टनर्स एंड एवरीथिंग, राइट. देन नेक्स्ट इज पर्पस. योर पर्पस हैज़ टू बी क्लियर कि हमें ये चीज़ के लिए पार्टनरशिप करनी है. आई वॉन्ट टू मेक अ पार्टनरशिप फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. योर पर्पस फॉर विच, द मोटो फॉर विच यू आर डूइंग दिस पार्टनरशिप फॉर्म नीड्स टू बी क्लियर कि हाँ भाई ये चीज़ है, इसके लिए हम पार्टनरशिप कर रहे हैं. जैसे कि पार्टनरशिप मैं कर रही हूँ, करेक्ट, और मैं ऐसा बोलूँ गुजरात इज़ अ ड्राई स्टेट, और मैं ऐसा बोलूँ कि लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ लीकर with my 4 of my friends, then the purpose is illegal, I cannot do so. The purpose of your partnership has to be legal, correct? So मैं ऐसा बोलूँ kidnapping का business शुरू करता है, that cannot be possible, right? Your purpose of doing partnership with someone, your purpose of doing business, that has to be legal. The next is number of partners needs to be clear. कितने होने चाहिए? Maximum number of partners that can be there in a partnership firm is 50. करेक्ट, बट देख लेना है वो भी कि हम कितने पार्टनर्स बिजनेस करने वाले हैं. नेक्स्ट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन. मैं बोलूँ मैं 5 लाख कैपिटल लेके आई, 5 लाख रुपए की, तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए क्योंकि मेरे दूसरे पार्टनर ने तो 2 लाख की कैपिटल लेके आया था. that all complications will arise. So in that case it has to be clear enough, fair enough कि इतने partners है, ये partner ये capital लेके आया है, this will be the profit sharing ratio, etc etc. And capital definitely as compared to sole proprietorship will be more because the persons are more, so they can
definitely bring more capital. Then next is management. Management, as I said earlier, it can be managed by all or a person acting for all. It could be anything. Then unlimited liability, the liabilities of the partners will be unlimited. कल जाके partnership firm हमारी चल रही है, even though I am not actively participating there, the one person who is managing everything is doing some mischievous act या कुछ ऐसा कर रहा है which is fraudulent, कुछ fraud कर रहा है, even though in that case all the partners will be liable and all the partners liability will be unlimited. जब तक हम उसका debt पूरा नहीं कर देते, जो फ्रॉड किया है उसका जो भी रीपेमेंट करना है या व्हाटएवर चीज़ें करनी है वो कम फिनिश नहीं कर देते, तब तक हमारी लायबिलिटी विल बी अनलिमिटेड. इवन फ्रॉम आवर पर्सनल एस्टेट वी आर सपोज टू पे बिकॉज द फर्म्स पार्टनर्स लायबिलिटी विल बी अनलिमिटेड, राइट. देन नेक्स्ट इज लीगल स्टेटस. येस ऑफ कोर्स, एज प्रार्थना भट्ट इज देयर, तो प्रार्थना भट्ट और वो जो फॉर्म में पार्टनर है वो दोनों का सेपरेट लीगल स्टेटस है. आई कैन नॉट से कि प्रार्थना भट्ट को रिप्रेजेंट कर, प्रार्थना भट्ट है तो वो पार्टनरशिप फॉर्म को ही रिप्रेजेंट कर रही है. द टू पीपल, द पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फॉर्म, बोथ आर हैविंग इक्वल लीगल स्टेटस. उन लोग का लीगल स्टेटस आर डिफरेंट. यू कैन नॉट से कि दोनों एक ही तो हुए, करेक्ट. देन लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन डिपेंड्स. आपने डे 1 से डिसाइड कर रखा है कि भाई हम 2 साल के लिए पार्टनरशिप करेंगे, देन लाइफ स्पैन विल बी ऑफ 2 years. आपने डे 1 से ऐसा डिसाइड करके रखा है कि भाई हम ये पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट के लिए, लेट्स से गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है और उसके लिए हमने पार्टनरशिप करनी है, देन योर लाइफ स्पैन विल बी फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. इतना प्रोजेक्ट खत्म हो जाए फिर अपनी पार्टनरशिप ओवर. और अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है और अपनी इच्छा से पार्टनर्स है, तो अपनी इच्छा से हम कभी भी क्लोज भी कर सकते हैं कि भाई चलो अब मज़ा नहीं आ रहा पार्टनरशिप में, झगड़े बहुत हो रहे हैं. दैट ऑल्सो बी पॉसिबल. देन transfer of ownership, that is difficult. You cannot transfer your ownership of your partnership firm without your partner's permission or without your partner's concerns. If I say कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे मेरी पूरी जो ओनरशिप है ना पार्टनरशिप फॉर्म में, मेरा जितना शेयर है पार्टनर का, बीइंग अ पार्टनर, वो मुझे मेरी फ्रेंड को ट्रांसफ़र कर देना है, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, ऐसा नहीं हो सकता. In that case, I need to take permission or I need to take concerns of my partners. If they are agreeing with it, then only I can do so. So that is difficult, right? So these are the characteristics of partnership firm. When I talk about advantages, सबसे पहला is easy process of establishment. हाँ, जाके बस stamping वैम्पिंग करवाना है, पर work of 2 hours. Your thing is done. So it is easy again. देन इंक्रीज्ड गुडविल. भाई एक बंदा है जो बेचारा गुडविल बिल्ड कर रहा है, उससे ज़्यादा 2-3, अब मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरे साथ 3 और चार्टर्ड अकाउंटेंट जुड़ रहे हैं, तो मेरी गुडविल भी बढ़ेगी ना फर्म की. धीरे धीरे करके हम सबका नाम जुड़ेगा तो डेफिनेटली गुडविल विल इंक्रीज. देन नेक्स्ट इज direct relation with customers. Definitely partnership firm में भी possibilities are there. Not necessarily सभी partners के relationship directly हो customers के साथ, but yes of course they can get in touch with the customers directly. See, partnership firm could be big, it could be small. 2-3 people are there who are partners, they can be in touch with their customers. That is nothing difficult. Then एफिशिएंट मैनेजमेंट. येस ऑफ कोर्स, मैं आज अकेली देख रही हूँ तो मैं परचेज भी देख रही हूँ, सेल भी देख रही हूँ, ये देख रही हूँ, वो देख रही हूँ, इट विल बी डिफिकल्ट. बट इफ आई हैव माई पार्टनर्स विथ मी, दे आर लुकिंग एट द फाइनेंस, वन पार्टनर इज लुकिंग एट फाइनेंस, आई एम लुकिंग एट द टीचिंग डिपार्टमेंट, वन पर्सन इज लुकिंग एट द एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, वन पर्सन इज लुकिंग एट द करिकुलम एक्टिविटी डिपार्टमेंट, एकेडमिक्स पार्ट की भाई कितना हुआ है, क्या है, ये स्टूडेंट्स एब्सेंट है, प्रेजेंट है, whatever. So the work is divided for all the branches, so the work is divided, so that is possibility. Efficient management will be there. Then next is what, more capital. वो तो definitely है, हमने आगे भी देखा. Yes of course matches रहेंगे, definitely रहेंगे characteristics और advantages में. Next is advantage of division of work. जो काम है उसका डिविजन हो जाएगा ना, एक बंदा बेचारा कितना करेगा, तो डेफिनेटली ये मैंने जो अभी एग्जांपल दिया कि भाई वन पर्सन इज देयर हु इज लुकिंग एट द फाइनेंस डिपार्टमेंट, वन पर्सन इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट द एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, एंड वी आर पार्टनर्स, या वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच विद ईच अदर, वी आर वर्किंग टुगेदर, बट एवरीवन्स डिपार्टमेंट इज डिफरेंट, सो द वर्क इज डिसेंट्रलाइज कि भाई चलो ये करेगा, ये वो करेगा, ये वो करेगा, तो द डिविजन ऑफ वर्क इज देयर, सो इट विल बी रिलीव्ड, क्वाइट रिलीव्ड.
देन नेक्स्ट इज प्रॉपर डिसीजंस. डेफिनेटली जब हमने सोल प्रोप्राइटर में देखा था तो भाई रॉन्ग डिसीजंस के चांसेस थे. यहाँ पे देयर विल बी प्रॉपर डिसीजन, क्योंकि एक बंदे का ही दिमाग नहीं दौड़ रहा, सभी का दौड़ रहा है. एवरीवन हैज़ देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, एवरीवन हैज़ देयर ओन ओपिनियंस एंड दे कैन गिव देयर ओपिनियंस सो दैट अ पर्सन कैन अंडरस्टैंड कि भाई हाँ चलो ये यहाँ पे मैं गलत हूँ, ऐसा भी कर सकते हैं. सो दैट विल बी वॉट प्रॉपर डिसीजंस विल बी टेकन. देन नेक्स्ट इज protection of minority interest. Protection of minority interest in which sense, even though you are partner हो आप, बहुत कम उसके कम शेयर है आपका, फिर भी there will be your इंटरेस्ट इन इट. आप पार्टनरशिप फॉर्म में आपका उतना ही इंटरेस्ट बना रहेगा जितना बाकी पार्टनर्स का है. ऐसा नहीं कि आपका बहुत कम शेयर है तो आपको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, या आप कोई ओपिनियन ही नहीं दे सकते, ऐसा नहीं होता. इवन दो यू आर अ वेरी स्मॉल शेयर वाला पार्टनर, 10 पार्टनर्स है जिसमें से एक पार्टनर का शेयर बहुत कम है, स्टिल ही इज हैविंग दैट राइट टू गिव हिज ओपिनियन. Equal right is given that the person can give their opinion correctly, right? Then flexibility will be there. If the mutual understanding is good, then the flexibility has to be there. If mutual understanding is not there, then flexibility issues can be there. Then decentralization of economic power का भी decentralization हो जाएगा ना भाई, सब कुछ economically भी the firm will be sound now. If one person is there handling the economic department यानी finance department also, then it is difficult. But if there are more than one person, definitely the thing will be stabilized. Then less tax burden. Again the organization is not that big कि बहुत सारा टैक्स भरना है, डिपेंड करता है वो. यहाँ पे I can say depends. अगर आपकी फर्म बहुत बड़ी है, यू आर अर्निंग ह्यूज, यू आर सपोज टू पे मोर. बट इफ़ योर फर्म इज आई कैन से अ मीडियोकर फर्म जहाँ पे 5-6 पार्टनर्स है, इट इज़ अर्निंग डिसेंटली, देन यू आर सपोज टू पे द टैक्स अकॉर्डिंगली. बट एज कम्पेयर टू द कंपनीज द टैक्स इज लिटिल लेस. So that are the advantages. When I talk about the limitations में सबसे पहला लिमिटेड कैपिटल. मैम अभी आपने बोला इनफ कैपिटल, अब आप बोल रहे हो लिमिटेड कैपिटल. कंपैरिजन करो, सोल प्रोप्राइटरशिप से बेटर है क्योंकि कैपिटल इज मोर, बट कंपनी से कम है क्योंकि कैपिटल इज लेस. इन दैट वे देयर इज लिमिटेड कैपिटल कि भाई कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, देन दे कैन गेट द मनी, इक्विटी शेयर्स, they can get the equity share capital from the people, they can get the money from public at large. As compared to company, the capital is little less, little नहीं बहुत ज़्यादा less. Then unlimited liability, that is the limitation. Unlimited liability partners की रहेगी even though they haven't done anything. एक बंदे की वजह से पूरी फर्म के पार्टनर्स फंसे हैं, फिर भी their liabilities will be there. देन पॉसिबिलिटी ऑफ डिसएग्रीमेंट. आज सीधी बात है ना, पार्टनर्स है तो जैसे मैंने बोला म्यूचुअल कंसेंट्स आर देयर, देन इट इज़ फाइन. पर पॉसिबिलिटी डेफिनेटली इज देयर कि डिसएग्री करें, नहीं मुझे ये नहीं करना है, आप बोल रहे हैं आपको ये ऑर्डर लेना है, मुझे नहीं लेना है. इन दैट केस देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट. और इसीलिए मैंने पहले बोला कि भाई द अग्रीमेंट नीड्स टू बी देयर इन रिटर्न. अगर रिटर्न होगा ना तो यू कैन टेल कि भाई नहीं ये बात हुई थी, ऐसा होना चाहिए. आज मैं म्यूचुअली ऐसा हम डिसाइड कर ले डे 1 पे कि भाई एवरी मंथ हम 10,000 रुपीज़ विड्रॉ करेंगे, ओरली डिसाइड हो चुका. एक महीना गया, सबने 10-10 हज़ार विड्रॉ करे, और एक चौथा पार्टनर था वो आया कि नहीं 10,000 की बात नहीं हुई थी, 20 की बात हुई थी. तो प्रूव कहाँ से करोगे कि 20 की हुई थी कि 10 की बात हुई थी? इन दैट केस इफ़ इट इज़ रिटर्न देन इट इज़ डेफिनेटली बी यूजफुल. देन डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग द सीक्रेट्स. सीधी बात है ना, मैं किसी और एक पार्टनर को बताऊँ कि ऐसा कुछ सीक्रेट है अपना, वॉट एवर, अकाउंटिंग सीक्रेट्स कैन ऑल्सो बी देयर, बिजनेस रिलेटेड सीक्रेट्स कैन ऑल्सो बी देयर. तो देर आर चांसेस कि भाई बाकी के पार्टनर्स को ईजिली पता चल जाए. So there won't be any secrets that you can maintain as compared to the sole proprietorship. Then difficulty in share transfer. वो मैंने आगे भी बताया कि भाई आज मुझे इच्छा है कि मुझे अब नहीं करनी है पार्टनरशिप और मेरा पूरा शेयर मैं मेरी फ्रेंड को ट्रांसफ़र कर दूँ, तो ऐसा नहीं चलेगा. आई नीड द कंसर्न्स ऑफ माई पार्टनर्स. देन डिले इन डिसीजन मेकिंग. क्योंकि आज चलो मैं तो क्लियर हूँ, मुझे ये डिसीजन लेना है, पर मेरे पार्टनर्स कुछ जवाब नहीं दे रहा है, तो कैन आई टेक द डिसीजन? द आंसर इज नो. आई नीड कि भाई मुझे ये काम करना ही, और ये ऑर्डर हमारे लिए बहुत अच्छा है, या प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारी फर्म को बहुत कमा के देगा, ये सब मेरे को पता है, पर मैं क्लियर हूँ, मेरे पार्टनर्स जवाब नहीं दे रहे, तो डिले करना पड़ेगा. मे बी ड्यू डेट्स चली जाए. दो आई एम प्रिटी मच क्लियर, ये करने से बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है फर्म को, फिर भी आई नीड टू वेट फॉर माई पार्टनर्स टू आंसर. चलो देन शॉर्ट लाइफ स्पैन. एज कंपेयर टू कंपनी इसका लाइफ स्पैन इज स्मॉल.
एंड डिपेंड करता है, अगर डे 1 से डिसाइडेड है 2 साल तो short lifespan could be there, right? So this is what the characteristics, advantages and limitations are of partnership form. I hope you are clear with the partnership form of business organization, that you can check it out on your page number 47. Page number 47 पे you can check it out. Partnership का meaning is there, characteristics are there, then advantages is there 48 page पे, 49th page पे limitations are there. I hope you all are clear with the same. In our next session we'll be discussing something more in partnership form itself. Thank you.